my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, Yeah. visible. yes. ये जो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? Yes, yes. Yes, visible. Yeah. So, today's webinar will be on financial life transformation through belief change. We often think of financial life transformation after, especially after Corona days, that stocks, some hot tip on stocks will transform our life. Many people think that some option strategy will transform their life, and some sudden change in some sudden decision will change their fortunes overnight. But the fact is that it doesn't happen. Wealth is not created overnight. And if you think of this, if you just review the success rate of investment success, you will be surprised to see that the investment success is only 10%. It means out of 100, only 10% of the people are actually able to beat the inflation and are profitable. And if you think of a trading success, only 1% of the people are successful. So why is it so? Why is it that when everything is available on Google, why we are not successful in transforming our financial life? Is it something related with the stock selection, fund selection, or is it something related with you? So that is being researched in the last decade. Rather, it is being researched since last 3 decades. If you have heard of Daniel Kahneman, who won the 2002 Nobel in economic sciences, so he was awarded the Nobel Prize for his exemplary research on basically decision making under uncertainty. So lot of focus is being now given by the financially successful people as to what actually makes the people successful. So today what we will be studying is basically I will be focusing more on that part which is extensively researched. So we will be understanding what is money. Then I will be telling you the 5 eye-opening principles, massive money principles. Then the secret of financial education and how money beliefs are shaping your present and future. Then there is a excellent study that is being done on the financial personality, so I will be touching that part of the financial behaviors also. But prior to that, because it is a new year, so we will be first spending 3 to 5 minutes on the new year resolution part, taking the bird's eye view and then moving to the financial transformation journey. I will request all of you to go on mute if you are if your mic is on, and make a list of questions. I will be trying to finish this webinar in 45 to 50 minutes, and then we will have a interaction and queries result. Beginning of year is there. We need to plan the year by taking a holistic view of our life. There are 8 dimensions. One quarter is related to career and finance. The second is even dearer part of our life, that is family and health. Then one part is friends and recreation, which is the external part, and one part is internal part, which is personal development and spiritual. So while planning, we need to not only focus only on financial part or career part, which is dominating in most of the youngsters, but we need to take a total 360-degree view of life, find the gaps in each area. This is called 360-degree life planning, which can be a separate session at some time later, but you can identify where the gaps are there, and you can compose your goals accordingly. The top 7 most sought after goals and the new year resolutions are focusing on health, then investing in relationship, reading more books, looking at your finances, mental health,
pursuing your aspiration. And another thing that is now coming nowadays is basically the distractions from the technology, so disconnecting from the phone or the social media. But at the same time, I am not discouraging you, but let me share some fact. When people set the goals at the beginning of year, you may note down the research. 25% of the people lose track in first 7 days, and by the end of 6 months, 50% of the people leave or abandon their goals that they have set in the beginning of year. And by the end of the year, only 8% of the people are able to make their goals come true. So if you want to be a part of that 10%, then I must give you a toolkit which is a summary of 10 to 15 books on management and life, which I have included and summarized in a single slide, which I will be showing as the next slide. This part I have covered during the goal setting session which I conducted last year. These things are very important and totally scientific. You can write down these 7 points because it forms a part of the goal setting process. Randomly desiring something doesn't help you a lot. से कुछ नहीं मिलता. तो ये 7 स्टेप्स है. ये सातों स्टेप्स पे हमको, यदि हम सिस्टमैटिक वर्क करेंगे तो ही हमको गोल सेटिंग में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. If your success rate without following particular process is say 35% or 30%, it will go to 50%. First is set the SMART goal. Sufficient literature is available on Google, so I don't clarify on that. Most of the people are aware what are SMART goals. Then second most important thing is write down your goals. Writing down is most important. Third point is the most important among these points, is to focus on what you want. Our most of the thinking is dominated based on what we don't want, so we are not able to define the goals. Fourth thing, most important thing, set the uncomfortable and clear goals. If your goals are comfortable, then it is a strategy of failure, because there is no magic in the comfort zone. The magic starts at the edge of the comfort zone. So you should set the goal in such a way that the probability of achieving the goal is 50%. It shouldn't be impossible goal and it shouldn't be easily achievable goal. Then fifth and sixth rule you will rarely find somewhere, or you might have slipped that rule. At the beginning of the goal setting process, you should focus on what. Normally most of the people while setting the goal focus on how, कि कैसा करेंगे. How is a laborious work. You don't need to know anything about that. First and the foremost important thing is you should know what do you want. Because when you go into the how, there are hundreds of process and ways of achieving that, and you may not be clear at the beginning. So if you focus on how, you will not be able to figure out why and figure out what. So eventually you will lose the motivation during the process, because if the goals are not clear, nothing will come back to you. And our actually biggest problem is not the lack of motivation, it is the lack of clarity. You need not be clear about the path, you only need to be clear about the destination in the beginning. And when you start the journey, then you should be clear about the process. And even after doing 6 things, the likelihood becomes very less if you don't track the goals. Like what we do in financial planning, we set the financial goals and then we track on year basis. But some people ask, if I set the goal and if I know that I need say 3.5 CR to retire comfortably, then why do I need to track the goals? So if you don't have the sight of the goal at a particular frequency, you will lose the track. Normally the rule is that for the annual goal, you should review it at 10% to 25% of the frequency. Like if you have set the annual goal of achieving 100 points, then you should review it maybe monthly or bi-monthly.
there is no point in reviewing it on daily basis. In the investment portfolio, investors do the same mistake. They have very long term goals and they follow the goals on daily basis. They follow the portfolio on daily basis. So over tracking kills and no tracking also kills. So you should define what should be the precise tracking frequency. A sample of how to set the correct goal is, the goal cannot be I want to be rich or I want to lose the weight. It cannot be a goal. It is just a desire, and desires are basically doomed to be uncleared or unsatisfied. Goals have more likelihood of getting converted into success. So the clear goal cannot be I want to be wealthy. The goal has to be I want to have my net worth of 5 CR by 2025. This is a goal which will which has more probability of getting converted into a reality. So with this, I think that we have spent a good time beginning of the year because you have spent the time. So I thought it will be worthwhile to talk something about the goal setting because it is the most appropriate time to set the goals for the next year. Now let's come to the financial transformation journey and what are the recent developments that are happening across the world. Russell Fuller, who is a director of a Fuller Asset Management, has published a paper and he has shared so many insights as to how to create the journey in the how to create the wealth in the technology age and what helps you to actually create the wealth. uh, just let me ask, everybody is comfortable with English or should I be talking in Hindi intermediately? Please, Hindi, sir. Okay, so because some of the investors are also from South, so I will try to put some points in Hindi. I have actually in the questionnaire also I have drafted some points in Hindi. So some slides I will put in Hindi also as appropriate. तो पैसा बनाने के तीन तीन ही तरीके हैं, तीन सोर्सेस है पैसा बनाने के. वन इज इंफॉर्मेशन एज, यानी आपके पास में वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए जो इंफॉर्मेशन बाकी लोगों के पास में नहीं है. यदि आप किसी कंपनी से बिलोंग करते हो तो आपके पास चांसेस है कि कंपनी के अंदर क्या एक्विजिशन चल रहे हैं, कंपनी का क्या स्ट्रेटेजी चल रहा है, कहाँ कहाँ कैपेक्सेस जा रहे हैं, इसके बारे में आपको आइडिया हो. बट ये जो इंफॉर्मेशन एज है ये बहुत ही कम लोगों के पास में अवेलेबल रहता है, इसलिए काउंट ऑन इंफॉर्मेशन एज फॉर गेटिंग वेल्थी, क्योंकि दिस इज फॉर अ हैंडफुल ऑफ पीपल एंड नॉट फॉर द नॉर्मल पीपल लाइक अस. सेकंड एज, जिससे आप एक अच्छा अल्फा, यानी जो आपको जो नॉर्मल रिटर्न्स आता है, मान के चलो आपको नॉर्मल रिटर्न्स आ रहा है 8% 10%, तो अल्फा मतलब एडिशनल रिटर्न्स ओवर द मॉब और ओवर द बेंचमार्क. तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इज एनालिटिकल एज. एनालिटिक्स इज टेकिंग डेटा टू द डिसीजन. तो यदि आपके पास में डिसीजन मेकिंग है, कैन somebody kept the mic on? I request you to mute the mic. Yeah. So the second age is analytical age. The third most important and most ignored age is a behavioral age. So behavior is basically how the investors are behaving in the marketplace. मार्केटप्लेस में कैसा बिहेवियर है, क्रैश में कैसा बिहेवियर है, ग्रोथ जब हो रहा है तो कैसा बिहेवियर है. The sound is not clear, Mithil. Just a minute, let me check my audio music. There is an echo. Yeah. Sir, you can mute others. Prashant Lahani's Yeah. Lakshani's mic is on. Okay, now it has been put off. Yeah. Am I audible now?
Yeah, this is sir. clear. Yes, Yeah. तो ये जो बिहेवियरल एज है ये सबसे इम्पोर्टेंट एज है, और ये एज यदि हमारे पास में है तो हम इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है या बाकी जो पीयर्स है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ से हम लोग अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल अल्फास, यानी जो एक्स्ट्रा रिटर्न जो जनरेट हो जाता है या जो वेल्थ क्रिएट होता है, that is mainly created because of the behavioral age, and there is a lot of gap, lot of opportunity in the behavioral age. Now let's see what masters are saying. Master क्या बोल रहे हैं? The most important quality of investor is not intellect. क्योंकि इंटेलेक्ट रहता था तो प्रोबेबली टॉप इंस्टीट्यूट्स के MBAs, IIMs के MBA फाइनेंस, दे वुड हैव बीन द वेल्थिएस्ट पीपल, बट फैक्ट इज in fact contrary. It is the temperament that creates the wealth. और अभी लास्ट बिहेवियरल फाइनेंस ये जो एक सब्जेक्ट आया है विच इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज साइकोलॉजिकल थियरी, cognitive psychological theory and conventional finance, and provide explanation to people why people act irrationally in the market. तो बिहेवियरल फाइनेंस इज द नेक्स्ट बिग थिंग, जिसमें बहुत सारे इवन नोबेल आर बीइंग गिवन इन दिस एरिया ऑफ रिसर्च पर्टिकुलरली, बिकॉज द साइंटिस्ट बिलीव और द wealth gurus believe that the highest difference that you can make in your financial life is through modification of behavior. But behaviors are also resultant. So coming to the one of the most important slide, इसमें आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, it is basically a iceberg model of success. Many of you must be aware about it. तो हम लोग या दुनिया जो देखती है वो आउटकम देखती है, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं जो आइसबर्ग, सो दुनिया आउटकम देखती है, उनको नहीं पता है कि नीचे में क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या चल रहा है. बट इफ यू स्टडी द सक्सेस और इवन फेल्यूर्स, सो आउटकम्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द सक्सेस, एंड इवन द थॉट्स दैट कम इन योर माइंड are the results of the subconscious or unconscious belief that you hold. So attacking on the belief part can change the outcome extensively. They can change your behaviors and they can entirely change the results. So ये जो results वाला जो part है, जिसमें अभी if I talk only of the wealth creation, तो level 1 education अपने को सब तरफ मिलता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी मिलता है, MBA में भी मिलता है, गूगल पे भी मिलता है. दैट इज़ द फाइनेंस एजुकेशन, कि जिसमें आपको फाइनेंस के बारे में जानकारी रहती है. एडवाइजर्स ऑल्सो एजुकेट यू ऑन दिस फ्रंट. बट इफ़ यू सी द पीपल हु आर सक्सेसफुल लाइक वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर और ऑल द इन्वेस्टर्स, पीटर लिंच, whosoever, so they are focusing entirely on investors' behavior. So the level 2 education has become extremely important, which is called BEFI, behavioral finance. मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको ये अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो जो चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ इतनी आसान है कि वो हमको समझ में नहीं आती है, क्योंकि वी आर यूज्ड टू नो अबाउट द डिफ़िकल्ट थिंग्स और वी फील दैट डिफ़िकल्ट थिंग्स आर बेसिकली द ट्रू थिंग्स. बट फैक्ट इज़ दैट इसके नीचे का जो स्ट्रेटा है जहाँ पे आज हम वर्किंग करेंगे, लाइक मनी स्क्रिप्ट विच इज़ अ लेवल 3 काइंड ऑफ एजुकेशन, और उसके नीचे में है चौथा स्ट्रेटा जहाँ पे है मनी बिलीफ्स. सो आज मैं प्रोमिनेंटली लेवल 3 और लेवल 4 पे आपसे डिस्कस करूँगा. ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो आपको फिजिकली आइसबर्ग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही स्ट्रक्चर ह्यूमन माइंड का भी स्ट्रक्चर रहता है. हम बाहर से जो दिखते हैं दैट इज़ नॉट इवन 1% ऑफ आवर पर्सनैलिटी. जो बाहर के लोग जो देखते हैं वो पर्सनैलिटी है, बट अंदर में जो कैरेक्टर है या जो एटीट्यूड है उसको लोग रीड नहीं कर पाते. बट जो हमारा जो आउटकम है या हमारा जो पर्सनैलिटी है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ द बिलीफ्स. इवन इफ यू आर थिंकिंग ऑफ पर्सनल चेंज, पर्सनल डेवलपमेंट,
then the most important deciding factor or the most important factor where you should be attacking is not the way you should dress in the beginning, or not the way how others dress or how others act. It is, you should make a list and hunt for the beliefs that drives your behaviors. So that's why I have chosen beliefs as the topic for today's webinar, and we will be exploring how to challenge the beliefs. जब बिलीफ टूटता है ना तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. एक्चुअली सबसे ज़्यादा मज़ा, सक्सेस से भी ज़्यादा मज़ा तब आता है जब बिलीफ टूटता है, क्योंकि बिलीफ सक्सेस के पहले टूट जाता है. और ओल्ड बिलीफ तोड़ने में बहुत मज़ा है. उसके कोई स्पेसिफिक ट्रिक्स या स्पेसिफिक टेक्निक्स भी मैं बताऊंगा. आज तो फाइनेंशियल केस के लिए अपन इसको रिव्यू कर रहे हैं, बट दीज आर कॉमन थिंग्स which drives ultimately to success in every area of life. So it will be helpful to you if you are thinking of doing some changes in your thought patterns. ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर बिलीफ्स. बिलीफ्स वो चीज है जिसको हम जाने अनजाने में सच मानते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछूं कि शिकागो ये शहर है या नहीं है, तो आप बोलेंगे शिकागो ये शहर है. यू बिलीव दैट शिकागो नाम का शहर एग्जिस्ट करता है. हो सकता है बहुत सारे लोगों ने शिकागो देखा नहीं होगा, फिर भी हम लोग ये मानते हैं कि शिकागो नाम का शहर है. सो बिलीफ इज नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव सीन द थिंग्स, बट इवन इफ यू हैव हर्ड और समहाउ you are convinced that that thing, then our mind perceives that reality as a fact and stores it as a belief. But once accepted, then that becomes a guiding system. अभी जरूरी नहीं है कि हर चीज का हमारे सामने में जब प्रूफ रहेगा तभी हम उस चीज को मान लेंगे, क्योंकि हमारे बिलीफ्स का जो प्रोग्रामिंग जो होता है that is done since childhood. अभी beliefs to outcome का flow नीचे आप देख सकते हैं कि beliefs actually drives your behaviors and actions, and that in turn converts into results. अभी ये beliefs हमारे माइंड में कौन डाल रहा है या कहाँ से आ रहे हैं beliefs. So most of the beliefs that come in our mind are programmed consciously or unconsciously, mainly in the childhood or by the society, parents, grandparents or schooling. अभी अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेके सोसाइटी के तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि probably 10-15% of the people are successful, probably 8-10-15% of the people are wealthy. बट हमारे को जो बिलीव्स बताए जाते हैं, they are based on some beliefs of some, maybe our parents or maybe grandparents or whosoever. So it is their perception towards that particular aspect of money. But if we accept that, then that beliefs keep on giving the financial results to us throughout our life. एलिफेंट की स्टोरी सबको पता है. एलिफेंट रोप इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बिलीफ. And you just don't think that beliefs are restricted only to your mind. No, beliefs will impact even the universe. रॉबर्ट बैनिस्टर की स्टोरी आपने पढ़ी होंगी, तो कितने सालों तक, कितने डेकेड्स तक डॉक्टर फ्रैटर्निटी, मेडिकल फ्रैटर्निटी ये मानती थी कि 4 मिनट से पहले पर्टिकुलर डिस्टेंस रन करना ये आपके पैर, आपके लिगामेंट्स को डैमेज किए बगैर पॉसिबल नहीं है. बट रॉबर्ट बैनिस्टर डिड इट, और उसके बाद में 15 साल के बाद में विद इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स 15 से ज़्यादा रनर्स जो थे उन्होंने वही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया. सो दीज बिलीव्स आर परवेजिव. और ये जो बिलीव्स है ये लोगों की कैपेबिलिटीज, लोगों की मसल्स, लोगों की नर्व्स, लोगों की थॉट प्रोसेस सभी को लिमिट कर देते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. सो बिलीव्स हैव फार मोर पावर देन व्हाट वी बिलीव और व्हाट वी फील. तो एक एलिफेंट जो है, एलिफेंट को बचपन में एक पैर बांध के रख देते हैं रोप से,
और क्योंकि वो छोटा रहता है तो वो रोप को तोड़ नहीं सकता। जो एलिफेंट को चलाता है उसको ये पता है कि बड़े एलिफेंट को मैं रोप से नहीं बांध सकता, इनफैक्ट मैं बड़े एलिफेंट को किसी चीज़ से नहीं बांधता, तो वो बचपन में उसको रोप से बांधता है और बाकी ज़िंदगी भर उसको बिलीफ से बांधता है। तो एलिफेंट ने आपने देखा होगा तो एक छोटी सी रस्सी से एक पेड़ को बांधा हुआ रहता है और वो ये ज़िंदगी भर मानते रहता है कि ये जो रोप है ये मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, जबकि अगर वो अपने बिलीफ को चैलेंज करे तो वो रोप क्या वो पूरे पेड़ को उखाड़ सकता है। बट एलिफेंट इज बाउंड बाय बिलीफ्स नॉट बाय रोप। सो द फर्स्ट की to know is that you need to challenge your existing belief and replace them with the new beliefs. You may fail at many times, but if you most of the people fail because they fail to do the next attempt. You need to basically you need to challenge your limits all the time, because your limits are not defined by any external circumstances but by your own beliefs, which is called limiting beliefs. अभी मैं प्रैक्टिकल लेवल पे आता हूँ। आज का जो कोर्स मैंने जो डिज़ाइन किया है इसमें प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा है, जो मैं 15-20 साल से स्टडी कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लेवल पे भी स्टडी कर रहा हूँ और मेरे 300-350 इन्वेस्टर्स के साथ भी मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये पैटर्न्स मैं लोगों के देखता हूँ। कुछ लोग ये बताते हैं कि मेरी ये लिमिट है और ये लिमिट के आगे मैं जा ही नहीं सकता। सो दीज आर माई लिमिट्स। तो कॉन्फिडेंट के साथ बताते हैं मैं कितना भी कुछ भी करूं मेरे को इस पैसे से ज़्यादा पैसा नहीं मिल सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक कदम आगे जाते हैं और 2 कदम पीछे आ जाते हैं। उनका पैसा जो है वो पोर्टफोलियो 3 लाख से 10 लाख जाएगा, 10 लाख से 2.5 लाख आ जाएगा। अगर आपका इस टाइप का पैटर्न है या आपका पोर्टफोलियो अगर डिमिनिशिंग है, अगर आपने पिछले 6 साल में, जस्ट टू गिव यू एन इंडिकेशन, पिछले 6 साल में आपका पोर्टफोलियो अगर 2.5 to 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो यू कैन प्रिज्यूम दैट यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम लिमिटिंग मनी बिलीफ और लिमिटिंग वैल्यू बिलीफ। इनकम में सालों साल ग्रोथ नहीं हो रहा है, पैसा आता है और चले जाता है, बिल्डअप नहीं होता है, या एक बहुत बड़ा बीमारी है कि आपको पैसा स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा हार्ड बर्निंग होता है। यू हैव अ वेरी हार्ड टाइम इन स्पेंडिंग इवन स्मॉल थिंग्स। सो इफ दीज आर द सिम्टम्स देन यू शुड रिव्यू। सर मैं 1-2 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा। श्रेयस सर आप आपका माइक बंद करिए, तो हमिंग आवाज आ जाएगा। तो यस सर। अभी बिलीव्स का दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हम इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने एक्वायर किया, इट वाज आवर डिसीजन, वी वेयर अनअवेयर। जो पर्सन हमको बता रहा था कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है या पैसे से पैसा बनता है, ये जो बता रहा था, तो इट वाज हिज बिलीफ, इज फॉर हिम इट इज़ अ रियलिटी। नोबडी इज प्रोग्रामिंग अदर्स इंटेंशनली, बट वी आर गेटिंग प्रोग्राम्ड अनकॉन्शियसली। But the fact is that you can reprogram your mind, you can rewire your mind. So let us first see some of the beliefs. और ये जो beliefs है इसमें आपको instantaneously आप उसको आंसर कर सकते हो। I will be showing you some of the beliefs. I have 72 beliefs which I have shared with some people. I will share you at a later stage, no problem about it. But you need to instantly write your view about that belief. It is a mix of various beliefs. Is it visible to you? Can you see the money beliefs? Can you see the question here on the screen? Yes, yes. Yes. Yeah, we can see. So, can somebody read what we will be doing? We will be, because these are 72 beliefs, but
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अराउंड 20 बिलीफ शुरू के और 20 बिलीफ बाद के, ऐसे 40 बिलीफ डिस्कस करेंगे। आपको इंस्टेंटली आंसर लिखना है आपके डायरी में, और इसमें के 3 to 5 बिलीफ्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे इन अ क्वेश्चन एंड आंसर। यू कैन, इफ यू वांट टू डिस्कस, वी विल डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट। अगर आप ये स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो आपको एक लिखना है, और अगर आप इससे एग्री नहीं करते हो तो आपको डैश लिखना है। आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ विथ यू, यू जस्ट नीड टू पिंग मी मनी बिलीफ क्वेश्चन, आई विल सेंड इट टू यू, नो वरी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें मैंने जो बिलीफ क्वेश्चनियर को हिंदी में भी कन्वर्ट किया है, थोड़ा सा 19-20 इसमें रह सकता है ड्यूरिंग कन्वर्शन। सो अगर ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है, सो यू कैन आस्क। So question 1, can somebody read it? Shilpa, can you please read it? Okay, fine, I will read it. You just go on writing. Things are very simple because they are part of day-to-day belief system. Number 1, money is the root cause of all evil. पैसा सब बुराइयों की जड़ है। अगर इस स्टेटमेंट को आप सही मानते हो तो आप, आपके पास में सिर्फ एक लीजिए, आपको एक लिख लीजिए, आपको स्टेटमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है। इट इज मोर एनलाइटन टू बी पुअर देन रिच। अमीर होना जो है वो गरीब होने से अच्छा है, गरीब होना या अमीर होने से अच्छा है। ज्यादातर अमीर लोगों ने पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ बुरा काम किया है, कुछ ना कुछ बेईमानी की है। 4th पॉइंट मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि कई रिपीटेशन है। अमीर बनने के लिए अधिक मेहनत और संघर्ष की जरूरत होती है। गेटिंग रिच इज अ मैटर ऑफ एक्सट्रीम हार्डवर्क एंड एक्सट्रीम स्ट्रगल। हैविंग लॉट ऑफ मनी इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है बहुत करोड़ों रुपए संभालना। पॉइंट नंबर 8, मेरे को ये लगता है कि मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा। नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ मैटर ऑफ लक और फेट। अमीर बनना ये किस्मत की बात है। लोग किस्मत से अमीर बनते हैं। अगर मैं मानता हूँ ये स्टेटमेंट सही है तो मेरे को एक लिखना है, अगर मैं मानता हूँ ये स्टेटमेंट गलत है तो मेरे को डैश लिखना है। अमीर बनना मेरा काम नहीं है। पॉइंट नंबर 11, वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट, स्ट्राइविंग फॉर वेल्थ वोंट अलाउ मच टाइम फॉर एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ। क्योंकि मैं पैसे के पीछे भागूंगा तो बाकी चीजें पीछे छूट जाएंगी। आपको अमीर बनने के लिए लोगों को मिसयूज करना पड़ेगा, लोगों का एडवांटेज लेना पड़ेगा। Are you finding it funny, or have you listened these thoughts at various places? बहुत सारे अलग अलग जगह पे इस प्रकार के thought. This is a collection done by a psychologist. This content is not my content. This content I have taken it from those who have been doing research for a lot of time. Striving for wealth won't allow much time for anything else in life. Then point number 13, if I get rich everyone will want something from me. मेरे से बहुत कुछ मांगेंगे लोग। Point number 15, if I have lot of money it means someone else is going to have less. क्योंकि पैसा कैसा है कि पैसा, एक का पैसा दूसरे में, स्टॉक मार्केट में हम लोग सुनते हैं ना, एक का पैसा दूसरे के पास जाता है, एक अमीर बनते जाता है तो दूसरा गरीब बनते जाता है। पॉइंट नंबर 16, अधिक धन होना यानी लालची होने के बराबर है। पॉइंट नंबर 17, आई एम नॉट गुड इन द एरिया ऑफ मनी एंड फाइनेंसेस, स्पेशली फॉर वुमेन present in this webinar.
मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो मेरा पैसा ज़्यादा लॉस भी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 20, मेरे में पोटेंशियल तो है, वेल्थ कमाने के लिए पोटेंशियल है, पर मेरे को ब्रेक नहीं मिल रहा है। पॉइंट नंबर 20। नाउ I because of the time constraint I am moving to the last 20 points, but they are entirely different version. So I am starting from point number 51. I am too busy to put a lot of time and energy into learning. क्योंकि मेरे काम में बहुत ज़्यादा मारामारी चलती है, आई एम डैम डिप्ड इन रूटीन्स, तो मैं लर्निंग के लिए और क्रिएटिव वेंचर्स के लिए अपने आप को कमिट नहीं कर पाता हूँ। कुछ रिपीट पॉइंट्स है वो इग्नोर किए है। पॉइंट नंबर 56, आई एम अ गुड गिवर बट आई एम नॉट अ गुड रिसीवर। मैं किसी के लिए, मेरे दोस्त को अगर प्रमोशन नहीं मिला तो मैं बॉस के लिए उससे झगड़ सकता हूँ, पर मैं मेरे लिए नहीं झगड़ सकता। देने के लिए तो मैं कुछ भी दे दूंगा, पर मैं जो चीज़ें हैं वो चीज़ें लेने के लिए मैं आगे नहीं रहता हूँ। पॉइंट 57, अदर पीपल्स ओपिनियन आर इम्पॉर्टेंट एंड ओपिनियंस अबाउट मी। पॉइंट नंबर 58, इट इज़ बेटर टू गेट पेड फॉर माई टाइम एंड देन स्ट्रिक्टली फॉर माई परफॉर्मेंस। क्योंकि मैं 8 घंटा काम कर रहा हूँ, 10 घंटा काम कर रहा हूँ, तो मेरे को काम की तनख्वाह मिलनी चाहिए। पॉइंट नंबर 59, क्योंकि आई एम ऑलरेडी कंफर्टेबल, मेरे पास पर्याप्त पैसा है या मेरे पास में अभी कंफर्ट है, तो मेरे को ज़्यादा पुश करने की, मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में प्यार है, हेल्थ है और हैप्पीनेस है, तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट 61, अगर मैं खुद बना सकता हूँ तो मेरे को लोगों की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं लोगों से हेल्प मांगूंगा तो मेरा वीकनेस प्रूव होता है। पॉइंट 62। पॉइंट 63, वेरी कंपेलिंग स्टेटमेंट, द ओनली रीजन टू वर्क इज टू मेक द मनी। पॉइंट 64, देयर इज नो यूज ऑफ अर्निंग लॉट ऑफ मनी बिकॉज आई विल हैव टू पे मोर टैक्सेस। क्योंकि मैं पैसा कमाऊंगा और टैक्सेस भरते तो मैं पैसा ही नहीं कमाता हूँ। ये भी एक सोच है। पॉइंट 65, वेरी कंपेलिंग स्टेटमेंट, वंस आई हैव लॉट ऑफ मनी आई विल फील सिक्योर। क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी पैसे से ही आएगी मेरे लाइफ में। मैं अमीर बन के प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं खुद को साबित करूंगा। पॉइंट 66, वेरी कंपेलिंग स्टेटमेंट, अमीर बनना ये कोई सीखने वाला स्किल नहीं है, ये तो आ जाता है। कुछ लोग अमीर रहते हैं, कुछ नहीं रहते। पॉइंट 69, मैं चाहे अमीर बनूंगा चाहे मैं गरीब रहूंगा, ये तो भगवान तय करेगा। पॉइंट 70, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। पॉइंट 71, जिनके पास पैसा है उनके लिए इन्वेस्टमेंट है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि मेरा तो अभी जॉब शुरू हुआ है क्योंकि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, तो पैसे के बारे में जान के मेरे को कुछ नहीं करना, ये तो पैसे वालों के लिए। पैसा रखने के लिए बैंक सबसे सुरक्षित जगह है। So have you put the marks against the arguments? Yes. Yes. अभी आप में से कितने लोग हैं कि जिनके आर्ग्यूमेंट्स में एट सम टाइम्स जीरो, एट सम ऑन सम ऑफ द पॉइंट्स 1 आया हुआ है? मैं Yeah. हूँ। Yeah. मैं भी। Yeah. I am Most also. of the people may be there.
if in this 72 question, if there is a single one, then that is your limiting belief. Every limiting belief may not have the impact to the same extent. Like, अगर मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो पैसा मैनेज करना डिफिकल्ट रहेगा, ये बिलीफ मेरे तरफ आने वाला पैसा पूरा नहीं रोकेगा. पर अगर मैं ये मानता हूं कि पैसा सारी बुराइयों का जड़ है, दैट विल स्टॉप. क्योंकि व्हाई आई विल डू दैट एट ऑल? इफ आई बिलीव दैट मनी इज बैड, इफ आई बिलीव इट सबकॉन्शियसली, why will I strive to be wealthy at all? कॉन्शियसली तो मैं करूंगा क्योंकि मेरे दोस्त ने डीमैट खोल दिया, किसी ने SIP चालू कर दिया, बट एट द हार्ट ऑफ हार्ट आई नो मनी इज अ बैड थिंग. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रियल गेम. लेट्स लर्न what is money and what are the principles that drives wealth in and out of our life. So let's look towards the money through the engineering point of view now. This is a actionable slide. ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि दिस इज अ 5-step प्रोसेस ऑन एनालाइजिंग हाउ टू ब्रेक द बिलीफ. अभी साइकोलॉजी की फैक्ट ऐसी है कि हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये रियलिटी है. मेरे माइंड में एक इमेज आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी फील्स कि आई हैव लॉस्ट द जॉब ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स, तो जॉब लॉस नहीं हुआ है, ये तो मेरे माइंड में एक इमेज आया है कि जॉब लॉस हो सकता है, कंपनी में प्रॉब्लम है. बट मोस्ट पीपल फील दैट थॉट्स आर, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो if at all you want to change the belief, you first need to understand that belief is a thought. Belief is not the reality. And once you identify that belief is a thought, then it is not that difficult to reverse the belief. So first thing is that क्योंकि प्रॉब्लम थॉट से चालू हुआ है, तो और कोई तरीके से कोई अच्छा स्टॉक, क्योंकि क्या है, अगर ऐसे मेरे पास में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं कि जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आते हैं और मेरे को बोलते हैं, अमित सर मेरे को बुढ़ापे में किसी के सामने में हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए मेरे को इन्वेस्ट, मेरा यही पर्पज़ है. स्पिरिचुअल रहते हैं लोग, सोच भी किसी को बुरा करने की सोच नहीं है, पर बोलते हैं कि मेरे को बुढ़ापे में हाथ नहीं फैलाना है, आई वॉन्ट टू सेव फॉर रनी डे. सो व्हाट आर द इमेजेस दैट आर हैपनिंग इन देयर माइंड कि बुढ़ापा आ गया है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है. बट यू विल सी ड्रास्टिक चेंज इन द पोर्टफोलियोज ऑफ दोज पीपल हु आर स्ट्राइविंग फॉर रिटायरिंग रिच. दो सम पीपल वांट life not to be like for rainy days. Some people are accumulating wealth for fun-filled days. So what drives you, what belief that drives you, what thoughts that drive you is extremely important. So you need to identify the limiting belief, a less power thought. Tell your mind first of all that it is a belief. Then you need to search if people who hold the different belief, are they more successful or are they earning more. अगर आपका पैटर्न, वेल्थ क्रिएशन का पैटर्न ऊपर ही जा रहा है कंसिस्टेंटली, भले ही बीच में थोड़ा स्टॉप लग जाता है, बट इफ़ यू आर ग्रोइंग तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है. मीन्स ये जो बिलीफ सबकॉन्शियस में एक आइसबर्ग के नीचे में जो पहाड़ी है, दैट इज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड वेल फॉर यू. यू शुड थैंक योर पेरेंट्स, स्पेशली टू द यंगस्टर्स. पर यदि इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंसेस, if you are struggling with the growth, then you need to go on hunt. और इसको ख़त्म करना यानी एक दुश्मन को ख़त्म करने जैसे है, तो इसके लिए you need to put your time and focus, kill one thought at a time. पर एक बिलीफ तोड़ने के बाद जो मज़ा आता है, ट्रस्ट में इतना मज़ा लाइफ में किसी में नहीं आता है. We will take the practical example. Then you need to challenge the old beliefs. और उसके बाद में आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में देखना है. दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. ये जो पांचवा जो पार्ट है,
you will see lot of new things happening in your life. Like I will show you a model कि इसके बाद में आपको दिखेगा एक्सटर्नली पैसा आना चालू हो गया. आई वर्क ऑन इनसाइड, मैं तो ब्रेन में नए रास्ते क्रिएट कर रहा हूँ और एक्सटर्नल वर्ल्ड में मेरे साथ में नई नई चीज़ें होना चालू हो गया. सो आफ्टर चैलेंजिंग द बिलीफ एंड यू हैव टू चैलेंज इट, इसका कोई टाइम कंस्टेंट नहीं है, ये 40 साल भी चल सकता है बिलीफ, और आप उसको 5 सेकंड में भी क्रैश कर सकते हो. इट इज़ whether you have some accountability partner or advisor, not financial advisor necessarily, but somebody who is financially successful. जैसे rich dad poor dad के केस में he had a second dad who was his partner, who was guiding him on how to create the wealth and clearing his beliefs. So with this I will tell you 2 to 3 examples of how to reverse the beliefs. अभी अपन पीछे वाले स्लाइड में पीछे वाले रॉन्ग बिलीफ्स जो मैंने आपको बताया इसमें जाते हैं, और आई विल शो यू 1 or 2 एग्जांपल्स हाउ टू चैलेंज दोज बिलीफ्स. कैन समबडी टेल विच वाज द हॉन्टिंग बिलीफ इसमें? जैसे आई एम शोइंग द फर्स्ट पेज, सो कैन समबडी टेल विच वाज द हॉन्टिंग बिलीफ टू देम? पॉइंट 1 to 10 में कोई भी पॉइंट ले लीजिए. चलो पॉइंट नंबर 1 ही ले लेते हैं. मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स. ये बहुत सारे लोग समझते हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, पैसा आ गया तो किसी का दिमाग फिर गया, पैसा आ गया तो बुरी चीज़ें करने लगा, शराब पीने लगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं. और दुनिया में जो भी हो रहा है वो सारे के पीछे अल्टीमेटली पैसा ही एक जड़ है. तो पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, ऐसा लोग मानते हैं. अभी आप मेरे को बताइए, if that is a belief and we are living with that belief and that belief is a reality for us, then this belief is not going to attract money in your life, because you will never be passionate about that, because subconsciously you will start feeling that I am promoting the evil. तो इस केस में आपको ये जो लिमिटिंग थॉट है इसका अपोजिट थॉट ढूंढना पड़ेगा. गो एंड हंट फॉर द केसेस. आप देखिए बिल गेट्स फाउंडेशन चला रहा है वर्ल्ड वाइड, दे आर फीडिंग टू लॉट ऑफ कंट्रीज, लॉट ऑफ पीपल, एंड मनी इज डूइंग सो गुड टू द पीपल. दे आर हेल्पिंग द डाउन ट्रोडन पीपल, गरीब लोगों को मदद कर रहे हैं. देर आर सो मेनी फाउंडेशन, टाटा का फाउंडेशन है, इन्फोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, सो मेनी गुड थिंग्स आर हैपनिंग विथ मनी. और वो तो छोड़ दीजिए, आज सबसे बड़ा अगर सोशल सर्विस आप कोई कर सकते हैं, सोशल सर्विस तो छोड़ दो, सबसे बड़ा सोशल सर्विस आज एम्प्लॉयमेंट है. तो पर्सन हु इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट, तो कितने सारे चूल्हे आज उनके कारण जल रहे हैं, बिकॉज दे हैव मनी, सो पीपल आर अर्निंग, बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग, सो पीपल आर अर्निंग. सो हाउ मनी कैन बी अ रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स? देयर कैन बी इविल केसेस विच आर ड्रिवन बाय मनी, but not all the evil can be assigned to money. So that way you need to find the cases. You will easily find cases because these are the blocks and these are not with everybody. There will be different blocks to different people. कुछ लोगों को लगता है कि टैक्सेस जो है वो टैक्सेस ज़्यादा पड़ेंगे तो उससे अच्छा है 10% की ब्रैकेट में, वो 30% वाले ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं. रॉबर्ट कियोसाकी बोलते थे यू शुड ट्राई टू बी द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन योर फ्रैटर्निटी. आप टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि बचा के कोई अमीर नहीं बना आज तक, बना के अमीर बना है, तो आप फोकस बचाने से बनाने पे डालो. सो दैट वे यू नीड टू हंट एवरी थॉट एंड दीज यू कैन ईजिली फाइंड. अभी स्पिरिचुअल थॉट है, आई विल बी कमिंग टू अ मैसिव प्रिंसिपल एंड टेल यू हाउ यू कैन बूस्ट द स्पिरिचुअलिटी बाय हैविंग मोर ऑफ अ मनी. सो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज 5 मैसिव प्रिंसिपल्स. These principles are so easy that it will be very difficult for you to digest, क्योंकि हमने जो principles सीखे हैं those principles are basically complicated principles. अभी ये जो 5 principles हैं they may be a bouncer for you, but these are the facts written by the and told by the wealthiest people, the biggest mentors on the earth. मनी इज नॉट रियल. अभी ज़्यादातर लोग पैसे को असली समझते हैं जबकि पैसा असली नहीं है.
मार्केट में अगर इक्विटी मार्केट्स में $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट है किसी मार्केट में, तो एक क्रैश में उसका $80 ट्रिलियन हो जाता है, $0.8 ट्रिलियन हो जाता है। पैसा एक दिन में 10% भी नीचे चले जाता है। तो अगर पैसा रियल रहता था तो 10% नीचे क्यों जाता था? मनी इज अ इमेजिनेशन, मनी फ्लोज इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ driven by your beliefs and imagination. It is not anything that is physical. Even अभी सारा डिजिटल होते जा रहा है। So जब तक आप समझ रहे हो कि पैसा असली चीज है, chances are that money, you don't understand money enough. Money is a idea. Money is not real. Money comes in your life through the imagination. It comes in your life through the beliefs and lot more to come in the second principle. आप अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मनी असली नहीं है, पैसा असली चीज नहीं है, पैसा एक इट इज जस्ट अ इमेजिनेशन। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हर यंगस्टर को नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ पैसे की बात करने के मूड में नहीं हूँ आज, हालांकि फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज मनी, इसका प्रिसाइज आंसर यदि आपको देखना है तो दिस इज द सेकंड मैसिव प्रिंसिपल। अभी मैं आप में से किसी को पूछूं कि हमको क्यों पैसा मिलना चाहिए, राइट साइड में यू कैन सी हमको क्या हार्डवर्क के लिए पैसा मिलना चाहिए, या टाइम के लिए पैसा मिलना चाहिए, या स्मार्ट वर्क के लिए पैसा मिलना चाहिए, या आउटकम्स के लिए पैसा मिलना चाहिए। सो आई विल जस्ट लाइक 1 or 2 people to answer what you should be paid for amongst the 3 to 4 points that I have given on the right side. आपको मेहनत का पैसा मिलना चाहिए या समय का पैसा मिलना चाहिए? कोई भी बोल सकता है। Anybody can unmute. Smart I work. think it is more of the time one invest. Time is a crucial factor. I think that has to give me a role. समय का Yeah, पैसा any मिलना चाहिए final हमेशा। outcomes we should be paid for. नहीं, for all 4 points. Okay. Fine. Please, anybody else और किसी को कुछ बोलना? Yes, smart work. ठीक है। So let's Yeah, mute. and Amit, I personally Let's mute believe because that of if time. I somebody will is go hiring, directly into the somebody subject. देखो अगर please everybody please mute. There is some noise. Yeah. ये देखो, अगर हार्ड वर्क के लिए पैसा मिलता था तो अभी मजदूर सबसे ज्यादा अमीर रहते थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोफेशन। अगर टाइम के लिए पैसा रहता था तो जो सिक्योरिटी पर्सन है वो 2 शिफ्ट कंटिन्यूसली करके ही वुड हैव बीन द रिचेस्ट पर्सन। स्मार्ट वर्क कैन अमाउंट टू मैनिपुलेशन। आउटकम्स इज नो डाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप बताइए मेरे को, एक डॉक्टर भी 12 घंटा काम करता है और एक नॉर्मल सिक्योरिटी पर्सन भी 12 घंटा काम करता है, बट वाई डॉक्टर इज पेड 1000 times, मे बी lakh times more than that person? And what is the role of money there? Please mark my words, especially for youngsters, because those who are basically means other than youngsters, they know a lot about it, they have seen it, but for youngsters, you get paid, rather world pays you for the value that you create in other people's life. It is the perceived value that gets paid for. एक डॉक्टर जो किसी की जान बचाता है, सो द परसीव्ड वैल्यू दैट ही एड्स, वो भले ही वो 1 सेकंड के कंसल्टेशन में करे, चाहे वो 4 घंटे के ऑपरेशन में करे, टाइम डजेंट मैटर, स्मार्टनेस डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज हाउ मच वैल्यू यू आर एडिंग टू द अदर पीपल्स लाइव्स। You get paid in any profession, regardless of any profession. You get paid for the value that you
add to other people's life. और अगर आप दुनिया देखो, अभी टेक स्टीव जॉब्स, ही इज एडिंग द वैल्यू टू मिलियंस ऑफ पीपल्स लाइफ. मुकेश अंबानी is adding value to millions of stakeholders. So this world is a place or a marketplace where value is traded. आप वैल्यू ऐड कर रहे हो लोगों के लाइफ में. अभी व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम ट्राइंग टू, आई वांट टू गिव लिटिल मोर टू माय इन्वेस्टर्स. So I am trying to add 1% more value to your life. If those employees who are very successful, management perceives that they are adding more value, they are more valuable. लोग तो मतलब जो CEOs के लेवल के लोग रहते हैं, so they are insured for crores of rupees. जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं, so they command, nuclear scientists, they command the security levels, because you get paid for the perceived value you add to others' life. And basically world is a mechanism where value is traded. I add value to your life, you add value to your employer's life, and in turn you get paid for the money. Now see on the left side, money is not real, it is a conscious agreement of measuring the value. ये दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है. वो लोग अमीर बन रहे हैं जो दूसरों के लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं. So the easiest way of getting wealthy is to start putting more value in other people's lives, in your stakeholders. That is the bottom line of everything. But there is another reflection of that which people don't understand. They just think that merely by adding value I should get compensated, but that doesn't happen because you are trying to push the shadow. स्टॉक मार्केट में लोग इसलिए बाइंग कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक ऊपर नीचे जा रहा है तो वो समझ रहे हैं, बट बेसिकली द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज अ बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन. एक आदमी खड़ा है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है दैट इज हिज शैडो. सिमिलरली व्हेन यू ऐड वैल्यू, वैल्यू इज ट्रेडेड एंड यू गेट मनी अगेंस्ट दैट. बट वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है व्हेन यू हैव अ निगेटिव बिलीफ अबाउट दिस गाय मनी एंड यू डोंट अंडरस्टैंड दैट यू आर गेटिंग पेड फॉर द वैल्यू यू ऐड. So the most phenomenal message what Jim Rohn, who is first generation motivator, he gives is that be valuable at your workplace. You don't get paid for the hour, you get paid for the value that you bring to the hour. So this is what defines your level of money, your deservance. क्योंकि क्या है ultimate rule, some thousands of rule, but there is only one rule. You only get in your life what you truly deserve, sooner or later. But you may not get what you deserve if you have negative perceptions towards money, negative beliefs towards money, which we would be studying in the coming slides. Is that part clear? Because this is one of the most important principle. It is the principle that you earn because value is traded and you are compensated by the money. Now third principle, this is another bouncer. Money is not real, money is not physical, money is a energy and money's nature is to magnify you. अभी ये जो 72 बिलीफ दिए थे इसमें क्या आधे बिलीफ्स के आंसर आपको ये टी हार एकर के एक स्टेटमेंट से मिल जाएंगे. ये देखिए पैसे से, अभी मैं दो केसेस बताता हूँ. एक आधा क्रिमिनल है और उसको लॉटरी लग जाए तो वो क्रिमिनल हो सकता है पॉलिटिशियन बन जाए. करेक्ट? इसका ये मतलब पैसे ने उसको क्रिमिनल से पॉलिटिशियन नहीं बनाया. आप इमेजिन करिए गांव के बाहर में एक मंदिर है, मंदिर में भगवान के सामने में तेल रखा हुआ है, एक बंदा आता है और वहां पे वो दिया जलाता है. ही फायर्स एंड लाइटन्स अ लैम्प. कुछ समय बाद एक बुरा आदमी आता है और वही लाइट से वो सिगरेट जलाता है और मंदिर के बाहर जाके सिगरेट पीता है. तो इसमें किसका गलती है? भगवान का गलती है या फायर का गलती है?
फायर से अगर कोई सिगरेट जला रहा है तो भगवान का गलती है, फायर का गलती है? दोनों का दोनों गलती का नहीं है, ही। परफेक्टली। वैसे ही एक स्पिरिचुअल आदमी को, देयर आर स्पिरिचुअल पीपल, देयर आर some people who are working with me because they want to be independent and do spiritual practices after 50s. So there are people कि जिनको money can set you free, money can set you independent provided you have independence in mind. Financial freedom का finances से कोई relation नहीं, it is all about freedom. वैसे ही अगर कोई आप अगर अच्छे हो और आपके लाइफ में पैसा आ जाए तो आप और अच्छे बनोगे। अगर आपको किताब पढ़ने की इच्छा है, अगर आपको ट्रैवलिंग की इच्छा है, अगर आपको ज़िंदगी जीने की इच्छा है, ये आप में पहले से है, और आपके लाइफ में पैसा आ जाए तो आपकी सारी पैशंस आप उससे फुलफिल करोगे। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाओगे। इसमें पैसे का कोई रोल नहीं है। और कोई अगर क्रिमिनल है, कोई अगर किसी को अगर दारू पीने का शौक है और उसके लाइफ में पैसा आ जाए तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पूरे क्रेट के क्रेट लगा देगा। सो मनी इज नथिंग, मनी इज ओनली मैग्नीफाइंग यू। सो द रियल सब्सटेंस इज नॉट मनी, रियल सब्सटेंस इज यू। दैट्स वाई जिम रॉन सेज वर्क far more harder on yourself than what you are doing on your job. आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड एक्सपांड हो जाएगा जैसे जैसे आपके पास पैसा आ जाएगा। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। मनी इज गोइंग टू मैग्नीफाई यू। इफ यू लाइक सोशल वर्क, you will help millions of people if you get more of a money. और जो पैसा खोने से डरता है, उसके पैसा डबल हो जाए तो उसका डर 3 गुना बढ़ जाएगा, चोरी का डर। मे बी ही स्लीप इन OCD. So money is just a medium. Money is doing nothing. It is you who is getting expanded. Money will only make you more of what you already are. So पैसे को आने दो आपके लाइफ में, but keep focus on yourself. This is one of the best principles of T. Harv Eker, or one of the best money principles I have ever heard. अभी थोड़ा इसका इंजीनियरिंग समझते, क्योंकि अगर एनर्जी है तो इट शुड फॉलो सम इंजीनियरिंग रूल्स. दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर सम पीपल हु हैव अर्निंग प्रॉब्लम, specifically youngsters or even people having higher age, and there are some people जिनको खर्च करने की बीमारी है, स्पेंडिंग प्रॉब्लम है. स्पेंडिंग बोला तो बहुत स्ट्रेस आ जाता है, बहुत सारा प्रेशर आ जाता है. मैं जिनके साथ वर्क करता हूँ ऐसे भी यंगस्टर्स है कि एक सैलरी नहीं हुआ तो आईफोन ले लेते हैं, और ऐसे भी लोग हैं स्पेसिफिकली 40s के बाद में, या जो ओल्ड जनरेशन से आए हैं, जिन्होंने थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है अपने लाइफ में, कि जिनको 200 रुपये का पॉपकॉर्न लेते हैं तो भी हार्ट बर्निंग चालू हो जाता है जब बच्चे पॉपकॉर्न लेते हैं तो. सो दे एंड अप इन बीइंग इंडिसिसिव. स्पेंडिंग इज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर द people of my age or maybe higher age, क्योंकि they have seen a financial struggle most of the time. उन्होंने बचपन में देखा है या उन्होंने ग्रूमिंग में देखा हुआ है. यंगर जनरेशन ने ये देखा नहीं है, तो फॉर देम हायर स्पेंडिंग इज अ प्रॉब्लम. अभी तक तो क्या था, अपन साइकोलॉजी स्टडी कर रहे थे और फाइनेंस स्टडी कर रहे थे, तो अभी तक तो लॉजिकली समझ में आ रहा था, गूगल भी समझा रहा था. अभी इसमें और एक लॉ ऐड हो जाता है मनी में, दैट इज अ लॉ ऑफ कर्मा. भगवद गीता 3:16, एवं प्रवर्तितन चक्रम नानुवर्तयति यः. लाइफ जो चलता है वो चक्र के फॉर्म में चलता है. मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बनाया है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को मैं नेक्स्ट जनरेशन को बनाऊँ. मेरे को सोसाइटी से पैसा मिला है, मैं सोसाइटी को लौटाऊँ. दिस इज अ साइकिल. somebody has helped me and somebody has paid the price for me, so I need to pay price for the society. ये जो साइकिल जब ब्रेक हो जाता है तो सोसाइटी में, फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है. मनी वर्क्स इन द सेम वे.
जब आपके आउटफ्लो में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, आपका इनफ्लो कम होने लगता है। वेयर एज द फाइनेंशियल प्रिंसिपल जो नीचे लिखा है, मैं वो अभी मेरे पास जो यंगस्टर्स आते हैं मैं उनको बताता हूँ आप खर्चे कम करो और इन्वेस्ट करो। बट फाइनेंशियल लाइफ में अगर इफ़ यू सी द दिस मनी प्रिंसिपल, तो आपके खर्चे कम होने के कारण आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। सो यू नीड टू एनालाइज इट बोथ वेज। बट इन जनरल आई विल टेल यू अ प्रिंसिपल कि अगर आपको सही में अमीर बनना है तो खर्चे बढ़ाओ। 100% एग्री। एट द हार्ट ऑफ हार्ट एवरीबडी नोज दिस प्रिंसिपल। ये मैं पर ये इतना आसान है कि ये मैं मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन। Now comes the real principle, how to make the money through goals. Your future income and your future net worth is dependent on what you mentally commit today. ये जो आउटफ्लो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी ये गोल्स क्यों सेट करना चाहिए, इसका साइंटिफिक आंसर मैं आपको ये एनर्जी डायग्राम से दे सकता हूँ कि आपके लाइफ के नीचे आपको गोल्स दिख रहे होंगे। वाई डू वी इंटर इन्वेस्ट गोल इनोवेशन, वाई वी आर इंसिस्टिंग ऑन पीपल टू सेट द गोल्स मेंटली एटलीस्ट। वैसे तो गोल मेंटली सेट करके फ़ायदा नहीं होता है। यू नीड टू हैव अ फिगर इन माइंड एंड यू नीड टू बी क्रेजी फॉर दैट फिगर। बट when you commit yourself to the goal, you commit to the outflow today. अभी जो यंगस्टर्स है, आप आपके पेरेंट्स से एक बार बात करो, एक बार उन्होंने पहला घर कैसे बनाया था। जब घर बनाया था तो शायद उनके पास ना घर बनाने का जब तय किया होगा पहला डिसीजन, तो उनके पास ना लोन रेडी होगा ना पूरा कैश रेडी होगा, पर घर कैसे बन गया पूछो। आपने लाइफ में जो भी अचीव किया है आज तक, आपने पहला स्टेप विदाउट रिसोर्सेस उठाया होगा। एग्जैक्टली। अचीवमेंट ही ऐसे होता है। अचीवमेंट पूरे ग्रीन लाइट घर से जब लग जाएंगे तो मैं घर से बाहर निकलूंगा, ऐसे अचीवमेंट नहीं होते। मैं बाहर निकलूंगा और मैं आई विल रीच टू द डेस्टिनेशन, जो होगा देखा जाएगा, बट गोल इज फिक्स्ड। रास्ता नहीं पता मेरे को। तो स्टार्टिंग में लोग ये गलती करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, रास्ते में गलती करते हैं कि गोल पता नहीं रहता। सो मनी फ्लो तब आपको, इफ यू अभी लेट मी, देयर आर सम पीपल इन दिस फोरम कि आई विल नॉट नेम देम, बट 2015 में जब बंदा मेरे पास में आया था, ही हैड नॉट सब्सटेंशियल वेल्थ, ही नीडेड 1 करोड़ टू रिटायर एट द एज ऑफ 48। 2015 के एंड में 10 साल में रिटायरमेंट चाहिए था, 1 करोड़ का वेल्थ चाहिए था। एंड टू माई सरप्राइज फर्स्ट वीक ऑफ 2020 2021 he writes a mail to me, Amit, now I am 1 year, 5 साल में, because he had the goal clear in mind. So goal is your basically the insurance of life. अभी इवन आप अगर हिटलर के ज़माने में भी जो लोग मर रहे थे ना, उनका इफ़ यू सी द लिसन टू देयर स्टोरीज, तो आपको समझ में आएगा कि जिन लोगों के सामने में गोल्स थे। एक राइटर के दिमाग में था, मैं न्यूयॉर्क के सिटीज़ में रास्ते पे घूम रहा हूँ और मैं राइटअप्स लिख रहा हूँ, he could somehow survive. तो जिन लोगों के सामने में कुछ गोल्स ही नहीं है, so they died helplessly. बट जिनके सामने में कुछ लिखा हुआ है, इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस कि जिनके सामने में कुछ जिन्होंने तय किया हुआ है, तो धीरे धीरे लाइफ विल somehow bring them through the ways or the roads which nobody knows and they will bring back. पैसे के लिए भी यही रूल है, पैसे के लिए भी यही रूल है। आप गोल सेट कर दो, पैसा अपने आप आएगा। मनी इज रिजल्टेंट। पैसा कमाने के 2 ही तरीके हैं, एक तो आपको बनना पड़ेगा या तो आपको मानना पड़ेगा। बनना पड़ेगा यानी आपको वैल्यूएबल बनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा यानी आपको मानना पड़ेगा कि मनी इज कमिंग इन माई लाइफ, मनी इज नॉट बैड। ऑल नेगेटिव बिलीव्स अबाउट यू नीड टू क्लियर दैट क्लटर, अगर कुछ है तो। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रिंसिपल। ये आउटफ्लो को लोग असेट में भी डालते थे और असेट से फिर से इनफ्लो बढ़ जाता है, जैसे यू कैन सी इट। बट दीज आर अ मैसिव प्रिंसिपल्स। अभी ये जो प्रिंसिपल है, ये तो बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल है। आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस प्रिंसिपल, आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस प्रिंसिपल। अथर्व शीर्ष में आपने सुना होगा, यो मोदक सहस्त्रेण यजति स वांछित फलम वाप्नोति।
Most of the people must have heard it. तो ये सिंपल पंक्ति Yes, है sir. कि जो 1000 मोदक गणेश जी को देता है तो उसको जो भी चाहिए वो मिल जाता है. अभी ये जो 2 लाइन है, दिस इज द इसेंस ऑफ सक्सेस. अपने को समझ में नहीं आता बट थिंग्स आर सो सटल. अभी कुछ लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं मेरे को पहले आप जो चाहिए वो दे दो तो मैं जाके भगवान को 1000 मोदक चढ़ा दूंगा. हो सकता है वो भूल जाए या वो आगे पोस्टपोन करे या 100 चढ़ा के आ जाए. बट दिस इज द रूल ऑफ सक्सेस. आपको पहले देना पड़ेगा फिर आपको मिलेगा. सक्सेस डिमांड्स प्राइस बट प्राइस इज डिमांडेड अपफ्रंट. If your strategy is to invest what is left at the end of month or left after spending, it is a strategy of failure. क्योंकि आप उसको आपका सीक्वेंस ही गलत हो गया. किसी का भी नहाना करने का रह नहीं जाता क्योंकि वो पहले नहाने का उसके दिमाग में रहता है कि मेरे को पहले करना है. तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो स्टार्ट विथ सम अनकंफर्टेबल थिंग्स एंड पोजिशन इट फर्स्ट. जो भी सक्सेसफुल लोग हैं दे आपको हो सकता है कि इन्वेस्टिंग जो है वो इन्वेस्टिंग अनकंफर्टेबल लगे. स्पेंडिंग इज अ प्लेजरस थिंग बट यू नीड टू कमिट फर्स्ट. तभी आपका असेट बिल्ड होगा और आपका इनफ्लो बढ़ेगा. ये जो रूल है, दिस रूल कम्स ऑल्सो फ्रॉम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन. वहाँ की दीवारों पे 2000 साल पहले से लिखा हुआ है. और यू कैन आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस इट. आई हैड लॉट ऑफ नॉलेज पर मेरा पोर्टफोलियो वैसे ग्रो नहीं कर रहा था. 2014-15 में मैंने ये एक्सपीरियंस किया था. बट लेटर ऑन जैसे मेरा इंक्रीमेंट भी हो जाता था ना, वो इंक्रीमेंट लेटर तो मैं पहले फेंक के पहले मैं SIP बुक करता था. आई हैव सीन पीपल इन्वेस्टर्स 5 अप्रैल के पहले इन्वेस्टमेंट हो जाता है उनका न्यू फाइनेंशियल ईयर का. दैट आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माई इन्वेस्टर. मेरा भी 15 तारीख के पहले आने वाले साल का ELSS का इन्वेस्टमेंट बुक हो जाता है. And then I saw a huge increment in my portfolio for no reason. You will see drastic improvement in your wealth or portfolios if you make a strategy or sequence is very important. अभी most of the youngsters क्यों fail हो रहे हैं? Because they starts with trading first and investing later चालू कर देते हैं. Sequence is very important. Always check the sequence. एक जनरल रूल आपको बता सकता हूँ, स्टार्ट विथ समथिंग अनकंफर्टेबल बिकॉज व्हाट इज कंफर्टेबल इज रेयरली प्रॉफिटेबल. नाउ बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट, आई विल just briefly tell you about the research which I was talking about. This research is done by a financial psychologist called Brad Klontz, जिन्होंने लास्ट डेकेड में रिसर्च किया हुआ है. एंड दे हैव फाइंड आउट 4 पर्सनैलिटी गैप्स. ये जो 4 पर्सनैलिटी गैप्स है, विद दिस आई विल बी कंक्लूडिंग द सेशन ऑल्सो. तो ये जो 4 गैप्स है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ रिपोर्ट फ्रॉम दिस मनीस्क्रिप्ट, तो आप moneyscript.com टाइप करिए या गूगल पे टाइप करिए moneyscripts.com. इट विल टेक यू टू अनदर वेबसाइट एंड यू कैन गेट अ फ्री रिपोर्ट फ्रॉम दैट. इफ़ यू वांट मी टू एनालाइज, आई विल एनालाइज इट फॉर फ्री. वी हैव आवर ओन सॉफ्टवेयर, तो उसमें हम लोग करते हैं. बट you can get the free copy from the moneyscripts.com, Dr. Brad Klontz का. But maybe we do it on some, because working days में उतना टाइम नहीं रहता, तो संडे में I can send if you fix a meeting. So I will do it complimentary for you if you are keenly interested. But most important thing is identify the beliefs जो मैंने बताया लिस्ट में and go on hunting. like लिस्ट बना के, it is just like एखादा जो माने जो आपने देखा होगा, अगर कोई मूवी, तो अगर कोई किसने मारा ये पता नहीं रहता है ना गुंडे को, तो वो लिस्ट बना के सबको ख़त्म करता है. सो दैट वे यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट ड्रैग्स यू, और उसको आप लिस्ट लेके आप उसको ख़त्म करिए. अदरवाइज दे विल कीप ऑन होल्डिंग यू. यू हैव टू टेक इट हेड ऑन. एक 4 टाइप के लोग रहते हैं. एक मनी अवॉइडेंस वाले लोग रहते हैं जो मानते हैं मनी इज़ बैड, जो अपन ने देखा उधर के क्वेश्चनियर्स में. कुछ लोग मानते हैं कि मनी वर्शिप, माने वो मानते हैं कि पैसा ही भगवान है. दे ऑल्सो डोंट मेक एनी मनी. ये तो फर्स्ट कैटेगरी. दे आर अमंग द मेनी पुअर पीपल
कि दे होल्ड देमसेल्फ बैक। फिर मनी वर्शिप करने से भी पैसा नहीं आता है, यानी इफ आई ओवररेट द मनी इट डजंट, बिकॉज मनी इज नथिंग, इट इज मनी इज रिजल्टेंट। सो ये लोग मानते हैं मनी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ऐसा नहीं है। यू हैव हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सो मनी। और वैसे भी जो हैप्पीनेस स्टडीज ये बताता है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल मनी हैज़ हार्डली एनी इम्पोर्टेंस। बिल गेट्स भी बताता है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम इट इज़ द सेम हैमबर्गर। उसके बाद में पैसा आपके लाइफ में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। प्रॉबेबली आपका सीटीसी अगर 3 लाख का 5 लाख 10 लाख तक जाता है, पर 20 के बाद में आगे के इसमें आपके फाइनेंशियल लाइफ में मनी इज़ नॉट गोइंग टू बी अ डिफरेंशिएटर। कुछ लोग मनी स्टेटस यानी अपनी सेल्फ वर्थ को मनी स्टेटस से कोरिलेट करते हैं। देयर वॉज अ टाइम कि जब इलॉन मस्क जो है वो इलॉन मस्क जो स्पेसएक्स लॉन्च करने के पहले ही वॉज अबाउट टू बी ब्रोक, उसका पैसा पूरा नीचे चला गया था, बट फिर भी उसका सेल्फ वर्थ जो था इट वॉज इंटैक्ट। तो आपका जो खुद का जो सेल्फ वर्थ है, आप नेटवर्थ, क्योंकि नेटवर्थ जल्दी चेंज होगा, मार्केट के साथ चेंज होगा, बट इफ़ यू कनेक्ट योर सेल्फ वर्थ विथ योर नेटवर्थ इट्स नॉट फेयर। योर वैल्यू इज योर वैल्यू, यू कैनॉट, money is only a partial reflection, your net worth is a partial reflection of that, but that is not what decides your worth. ये 3 लोग गलतियां करते हैं, फर्स्ट 3 एंड द फोर्थ कैटेगरी 80% of the millionaire fall in money vigilance category who are vigilant about money. They have a neutral view of the money. पैसा अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, आई जस्ट नीड टू ट्रैक द मनी। क्योंकि जो जिस भी लाइफ के एरिया में आप निग्लेक्ट करोगे दैट विल स्टार्ट बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर आपके लाइफ में कहीं पे भी प्रॉब्लम होते जा रहा है, सो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज यू मस्ट बी निग्लेक्टिंग दैट एरिया। सो अल्टीमेटली मनी विल कम टू यू इफ यू आर विजिलेंट एंड डिसिप्लिन्ड। इसका भी एक क्वेश्चन ईयर है, यू कैन गेट इन टच विथ मी इफ यू वांट, आई कैन शेयर दैट ऑल्सो। नाउ फाइनल वर्ड्स, how to look at money. You need to commit yourself to the excellence and value creation for your stakeholders. Maybe you are in a job, business, self-employed, whatever, but you need to commit yourself as for excellence and value creation and gracefully accept money as the byproduct of the services you render. पैसा प्रोडक्ट नहीं है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। सक्सेस भी बाय प्रोडक्ट है, सक्सेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलेंस। सो दैट वे यू शुड लुक एट द मनी। एंड नाउ बिकॉज यू नीड सम टेक्निक्स, आई कैन सजेस्ट यू सम ऑफ द बुक्स, लाइक नीचे में मैंने लिखा है थैंक एंड ग्रो रिच बाय पैम ग्राउट, बट आई कैन टेल यू सिंपल टेक्निक्स ऑफ रियलाइजिंग एंड इंक्रीजिंग योर इनकम टू सम एक्सटेंट। क्योंकि देखिए, आप वॉट यू डिजर्व उसके ऊपर में आपको नहीं मिल सकता, बट इफ यू आर गेटिंग लेस देन वॉट यू डिजर्व इन दिस डायग्राम, सो दिस गैप्स कैन बी फिल्ड बाय स्पेंडिंग। सो द टेक्निक इज I4 टेक्निक। when I intentionally increase my money outflows, it surprisingly leads to manifold increase in the inflows through various unexpected ways. That is a technique, you can take the screenshot of that. आपको सरप्राइजिंग वेज से मिलेगा इफ़ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, बिकॉज आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। मैं इतने सालों से कर रहा हूँ और जितना मैं पढ़ता हूँ ये सब, तो मेरे को समझ में आता है कि मेरे को कुछ भी नहीं पता है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, मेरा फ़ोन नंबर मैंने दिया हुआ है, यू कैन जस्ट मैसेज अ GRP ग्रुप। सो आई विल मेक अ ग्रुप एंड वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंसेस हाउ वी आर गेटिंग ब्लेस्ड विद द unexpected money coming from various things by these actions. So these are the 5 actions I am telling you how to increase your expenses. तो छोटा छोटा बार्गेन सर बंद कर दो आप। छोटा बार्गेन, अगर किसी को बार्गेन का आदत है तो जैसे गरीब आदमी से बार्गेन मत करो। इनफैक्ट आप रिवर्स कर दो, वो 30 मांग रहा है 50 दो। आप वेटर को 20 रुपए की टिप देते हो ना सर, उसको 50-100 रुपए की टिप दे दो एक दिन। You will walk far taller. Then second, more important than charity is a differentiator. Charity में वही होता है जो मैंने आउटफ्लो वाला डायग्राम बताया। इवन रॉबर्ट कियोसाकी यूज्ड टू टेल कि जब ही वाज इन अ क्रिटिकल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसके जो फादर थे यानी रिच डैड जो थे, ही यूज्ड टू गो टू चर्च एंड डू लॉट ऑफ चैरिटी इवन इन द मिस्ट ऑफ क्राइसिस।
सो इट इज़ बेसिकली इंक्रीजिंग द आउटफ्लो. पर चैरिटी हम कभी कभी करते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है सर एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस जो 24/7 चलता है. जाते जाते चौकीदार को एक सॉक का सेट दे दिया खरीद के, कोई अपने साथ काम कर रहा है उसके बच्चे के लिए कुछ दे दिया, जहाँ पे भी आपको गैप दिखता है थोड़ा सा आगे आके दे दिया. कोई काम मैं गूगल से चला रहा था, आई एम हायरिंग सम प्रोफेशनल्स. एलिवेट योर लाइफ स्टाइल, दिस इज द डिफरेंशिएटर जिसको आपको ब्रेन में ही चेंज महसूस होगा. 5th पॉइंट, आप अगर नॉर्मली स्लीपर से ट्रैवल करते हो, ट्रैवल बाय 3rd AC फॉर सम टाइम. आप 3rd AC से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल बाय 2nd AC. If you are frequently traveling by 2nd AC, travel by flight. Anyhow, increase your expenses. But at the same time, as a financial planner, आपको ये भी बता दूं मैं कि ये करते वक्त आप थोड़ा जो है वो 50-30-20 रूल भी ध्यान में रखिए. नीड्स एंड वांट्स वाला जो रूल है, 50% शुड बी योर नीड्स एंड 30% शुड बी योर वांट्स. मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंगापुर जाने का प्लानिंग था तो अमित ने बताया तो सिंगापुर का टिकट निकाल लिया, वो भी बिजनेस क्लास में, तो पूरा पैसा जो है वो चला गया अपना एक्सपेंसेस में, कुछ बचा नहीं तो SIPs भी रुक गई. ऐसा नहीं होना चाहिए. बट यू शुड इंक्रीमेंटली इंक्रीज योर आउटफ्लोस एंड दैट विल रिफ्लेक्ट. आपको दिखेगा कोई तभी ओल्ड पेमेंट आपको आ जाता है, आपको दिखेगा कहीं से, वो उस सोर्स से नहीं आएगा, आपको दूसरे सोर्स से आएगा. बट यू विल सी थिंग्स कमिंग बैक इन योर लाइफ, क्योंकि जो एनर्जी सर्कल है जहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेजेस थे, दे आर गेटिंग क्लियर्ड. सो दिस इज अ टेक्निक यू शुड इंटेंशनली अप्लाई एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस टेक्निक. पर एज अ प्रोसेस हम इसको नहीं करते, बट वन शुड ट्राई दिस I4 टेक्निक एंड इट वर्क्स मिरेकल फॉर यू. देयर आर सम टेक्निक्स टू इंक्रीज द इनफ्लो ऑल्सो. यू कैन गो थ्रू द पैम ग्राउट और बाकी भी बहुत सारी किताबें हैं, बट दिस आउटफ्लो टेक्निक इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. जो स्पेसिफिकली 35-40 के ऊपर जो लोग हैं जिन्होंने ओल्ड जनरेशन भी देखा हुआ है, मैंने पुराने नॉन टेक्नोलॉजी युग में जो बड़े हुए हैं, सो उन लोगों का प्रॉब्लम जो है वो आउटफ्लो का है, और यंगस्टर्स का प्रॉब्लम जो है वो इनफ्लो का प्रॉब्लम है. यंगस्टर्स को ये करना चाहिए कि दे शुड कंट्रोल देयर एक्सपेंसेस. You should ask yourself, but because this is again contradictory to what I am telling, कि जो यंगस्टर्स है जो पहली सैलरी में आईफोन ले रहे हैं, 5 महीने बाद मैक ले रहे हैं, सो दे शुड थिंक टूवर्ड एक्सपेंसेस. उनको पहले ये देख लेना चाहिए कि वेदर आई नीड इट और नॉट, क्योंकि वॉरेन बफेट ये भी बताता है कि इफ़ यू डोंट बाय द थिंग्स यू डोंट नीड, सो यू सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड. सो यू नीड टू फाइंड आउट अ बैलेंस, find out where the beliefs are paining me and then take the actions. But for all practical purposes, अमीर बनने के लिए खर्चे बढ़ाना, it works in majority of the cases and you should always follow the limits. जो 50-30-20 रूल मैंने बताया, so that rule should be followed. So this is, I conclude here. मैं कंक्लूड करता हूँ. जो भी थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आया था, आई थॉट दैट आई शुड शेयर विथ यू, एंड नाउ द फोरम इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, वन एट अ टाइम. एंड सॉरी, अपॉलॉजीज, मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, 10 मिनट बाद चालू हुआ था. आई टुक 1 hour 20 minutes. Amit, actually, it was really great. Okay, good presentation, and the way you presented was also equally good. Okay, and an eye opener for me. Pardon, sir? Okay, it was an eye opener for me. Okay. I had, sir, मैं लाइफ में जो भी सीखा हूँ, I have learned lot of things from you. I still hold you at a very high position. नहीं, position छोड़ो. What I request is actually, can you send this presentation actually? Okay. Share Definitely, sir. बिल्कुल. इसको शेयर करो, क्योंकि this presentation actually, yes, आपने प्रेजेंट भी किया, पर प्रेजेंटेशन भी इतना बढ़िया बनाया है कि भाई even I would like to send it to my kids, okay, so they also understand actually in the early age what I'm learning today. Okay. Thank you very much, sir. Thanks a lot.
Yeah, sir. Thanks. Even I do feel same thing. Yeah. Hello? Even I feel same thing to share the things with my daughters. So I will also love to share the entire event Sure, with my sure. daughter. Yeah, Thanks you just for drop me sharing. मेरा WhatsApp पे you just drop me presentation, so I will share with that group में भी डाल दूंगा मैं, कोई problem नहीं. Yeah, Yes, thanks, yeah. thanks a lot. Sir, the contents of the presentation is very good, sir, and very Thank useful you, to all, Ganesh. sir. Very good night Yeah, मेरा presentation. यही कंसर्न Yes, था sir. बिकॉज यू आर स्पेंडिंग, आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1.5 घंटा मेरे साथ में, सो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे संडे, तो एटलीस्ट यू शुड हैव सम टेक अवे, एंड आई थिंक इट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल लाइफ. अमित, मेरा मानना तो ये है कि एक्चुअली ये कोई फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड नहीं था, ये तो पूरा गेम चेंजर है, पूरा लाइफ चेंजर है ये जो आज Mind changer प्रेजेंटेशन too. बिल्कुल है अशोक जी, एक्चुअली बिलीफ इज द बिगेस्ट गेम चेंजर लाइफ में. इट इज ओनली द. ओके, थैंक यू. Let's please tell Yeah, the way you have connected to Prashant, your, will you just a minute? you know, Prashant, some will you please mute writers. because yeah, Anjali madam. Yeah, Anjali madam, please. Yeah, there is a lot of issue with this coming. Okay, I was very sincerely being a finance guy. I was deep penetrated into the reasoning of spending and how you elevate Yeah, your strata in your thought process, not in your, in your money earning, but your thought process. How, in a very interesting way, you have connected the psychological effect of the belief system to the output, to the outcome of the productivity in terms of money or getting rich. I was the other day seeing a Chetan Bhagat on a getting rich kind of yeah, strategy. So he says that I left my $1 million job in Hong Kong and I got into the entrepreneurship because one thing I thought that the book which I write or the write-ups are able to penetrate into billion people rather than $1 million exactly. salary. So I mean, I was so very mentally, it was giving a positive note that actually we have a belief system which drives us ruthlessly, primitive belief system and a Exactly. logical belief system. So you connected today very nicely with how to be logical while you are taking a decision, how to go away from the primitive thought process, and always be flexible on what is the change and is the change beneficial for the Yeah, upcoming days, as yeah, in yeah. productivity. Maybe it is a mental peace, or maybe it is a earning or elevation of the status quo, Correct. everything. So nicely, the psychological effect has really called in for a beautiful articulation of Thank you, the Anjali. presentation, and really will look towards more presentations and successful Sundays like this. Yeah, thanks, Thank you Anjali so madam. much. Anjali madam heads actually she's our HDFC Life Nagpur head for us. I will also like to introduce Shekhar sir, who was my mentor and in Reliance, means he was heading various sites, Nagpur side, then Silvassa side. But at the heart of heart, I am professionally enriched because of he has got lot of influence on me. Thank you, sir. And thank you, Anjali madam. Yeah. This is Professor Bapat, Yeah. Sridhar Bapat. I am at Yeah. IIT Dharwad now. Amit, you have been managing the funds and everything so nicely, but your time management about the lecture part also really very good as such. You could manage exactly within 1.5 hours. I was noting down the starting time, it was delayed a bit, but you didn't let it go beyond the 1.5 hour time Thank you, limit sir. as such. To pinpoint some specific things, I like the examples like that of the elephant, really giving the belief as the thing. And many examples which you have given were really thought-provoking and opening our eyes as such. Yes, we need to think
beyond what we have been thinking past. I happen to be in the earlier generation compared to you, if I can put it that way. May not be as old as your father or someone, maybe between the two Yes, yes. group sets, but still certainly much older than you. And realize that what you have said, we have been trying to practice it ourselves, have been having less of beliefs and trying to go away from the normal systems. And it's a really nice presentation, and many people will tend to get into that mode. Thank Thank you. you, Sridhar sir. It was Sridhar really sir was nice. with IIT Mumbai for till retirement, and now he is Dean Academic in IIT in Karnataka. So thank you, Sridhar sir. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Good afternoon, Yeah, sir. Nilesh. Yes, sir. I am Nilesh Naik. तो मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा सर। आज का जो सेशन जो रहा वो तो हमारे लिए इतना वैल्यूएबल मतलब इनक्रेडिबल रहा, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ विषय सब्जेक्ट टॉपिक या फिर हो सकता है। तो दैट इज द अशोक सर के हिसाब से मैं भी वही आई एग्री कि इट इज नॉट फाइनेंशियल लाइफ, इट इज द गेन फुलफिल मतलब एक मनुष्य के लिए जो अच्छा वैल्यूएबल नॉलेज है, तो गेम चेंजर करने वाला सेशन था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मुझे एक शेयर करना पड़ेगा सर कि हम अपने देश में खाली रह रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। तो एक बात मेरे को ऐसी पड़ी कि एक न्यूज़ मेरे को समझ में आई कि मैं ऐसा देख रहा था कि 1 लाख करोड़ के जो हमारे पड़े हैं वो अनक्लेम शेयर है। ऐसे जुने पुराने हमारे जो दादाजी पुराने लोगों ने शेयर लेके बैठे थे, वो लैक ऑफ नॉलेज या फिर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे 1 लाख करोड़ रुपए हमारे देश में पड़े। ये अगर हमारी इकोनॉमी में आएंगे ना तो हमारी इकोनॉमी एकदम चल बसेगी। Very true, Nilesh. But but तो ultimately, जैसे the central idea of today is basically the human behavior or others. So ultimately, it is a result of human behavior only. यस, तो ये पैसे को कोई हाथ नहीं लगा रहा है, गवर्नमेंट ना लगा सकता है, ना वो क्लेम करने वाला Correct. आदमी But लगा सकता है। तो इतना पैसा पर ऐसे ही यस पड़ा यस है पर ऐसा। ये तो तो ये है, मैं शेयर इंडिया में पड़ा है, पर हमारे अंडर कितना पड़ा है पैसा, हमारे अंदर अगर देखेंगे सबकॉन्शियस में जाके, तो देर इज अ ह्यूज वेल्थ which is tapped unexplored, so that is equally important because it is at actionable level. यस, Yeah, थैंक्स अ लॉट। thank you, Nick. Amit, I actually resonate whatever other participants have, talked about in this particular session that you had. It was actually a very exciting, very insightful, and very interesting session. We have had conversations around this in the past, but the fact that you talked about a term known as behavioral finance is something that is really catchy and really very interesting. So today we were kind of lucky to understand that there is a subject by the name of behavioral finance which is taking such an importance, and this actually tells us that the power to be financially independent is actually not in the outside environment, but it basically depends on the individual who basically wants to take the control. So that's a really insightful and very interesting perspective towards overall financial management for an Yes, individual yes. is concerned. Thanks for the session, it was very यानी जो interesting. स्टीफन कोवे जो बोलता है 7 हैबिट्स में कि इट इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सो थिंग्स आर इन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे है अपने, दे आर we can exercise Correct. a lot of control. Absolutely. Good afternoon, Amit. Thanks a lot for Yeah, your Vishal, thanks for presentation. joining. The presentation was wonderful, and I liked your presentation style as well. Your presentation style was too good. Personally, I stand to gain a lot from this presentation, and I'm privileged to have a friend and a financial consultant like you.
Thanks a lot. Thank you very Thanks, much. Vishal. Ravi, can you please comment something? Ravi Pathak. Ravi Pathak is my 10th friend, and I'm really happy that he has come. Ravi, I will like to hear from you. Hi Amit, it was really very nice to listen to you. Though most of us at this point in time, like at say 45, 50 years of age, we have a general understanding of why we need money in our life and what is the importance of money. However, linking it to the philosophical forum or the philosophical domain, that what exact value does money hold in your life is what really is appreciated. It was certainly different from run of the mill talks that we hear about. Uh, in even all these guys, Robert Kiyosaki and all famous names that you've taken, they have not been able to link it to the philosophy of Indian, context, and which I Yeah, think you because have done today. So we thank you use very it much, day Amit, in day and out. it was great. Yeah, just I will like to tell one thing. Ravi, you had been to Nagpur some 1.5 to 2 years back. That time at Haldiram, you said one statement that however money you have, कितना भी पैसा है कम रहता है. You might not be remembering it. Haldiram में तुमने बोला था. Fact, yeah, you Maybe, believe it yes, means maybe you of may course. not remembering it. Fact is that पैसा ऑप्टिमम रह सकता है. यू कैन मैथमेटिकली कैलकुलेट मेरे को 90 साल तक कितना पैसा लगता है. इट्स नॉट दैट अनलिमिटेड मैंने यू नीड अनलिमिटेड मनी टू बी सेटिस्फाइड. ऐसे जरूरत नहीं है. यू कैन हैव अ प्रिसाइज मनी कि यू नीड नॉट डाई रिच. You can have a sufficient money but not unlimited money. You need not die rich actually. You need to live rich. So it is possible, means mathematically possible. I मुग्धा मैडम agree with कुछ you, Amit. बोलना चाहते हैं. मुग्धा मैडम, यस. या मुग्धा मैडम कुछ बोलना. हाँ मुग्धा मैडम. Hello. I just want to share one thing that in my need, you had help at the time of my daughter's marriage. For that great help, I am such grateful to your help and your investments, मैडम which I blindly मैडम trusted you. मैं गोल्स के And लिए you मैडम मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब इन्वेस्टर पैसे निकालते हैं मेरे पास से. गोल्स, किसी का मैरिज है, किसी के डॉटर का मैरिज है. सो इट इज माई सक्सेस कि उसके लिए आपने ट्रस्ट किया अनसर्टन मार्केट्स में. यू मेड और आपने जो निकाला, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी एक्चुअली, बिकॉज आई एम फंडिंग yes, समबडीज मैरिज. तो yes, yes. And that could achieve a big goal in my life. Nowadays, marriages are not that easy to deal with. Even in middle class families, it requires minimum 20 to 25 lakhs. And you could help me only without without touching principal amount. Only the bonus part and interest part, you could help me a lot. मैडम More than बट मैं फिर 50% से you अभी could. टू रिलेट विथ अवर प्रेजेंटेशन में यही बोलूंगा मैडम कि यू ओनली गेट व्हाट यू डिजर्व. आपने वहाँ पे डिसीजन लिया. आपने अगर वो पैसा सोचा रहता था कि मैं सेव करना चाहती हूँ, क्योंकि सेफ्टी चाहने से नहीं मिलती एक्चुअली. सेफ्टी, हाँ सेफ्टी कोई चीज़ को आप सेफ मानने से सेफ्टी नहीं मिलती. सो यू हैव टेकन दैट डिसीजन. सो इट वाज अ वेल डिजर्व मनी. मतलब इसमें मेरा रोल, आई देयर इज अ रोल इन मैनेजिंग इन्वेस्टिंग टू सम एक्सटेंट, बट अल्टीमेटली it amounts to your decision making. No, my decision was as per your desire, and I didn't had even 0.1% of knowledge in all these things. Actually, And you did it. that I that just, that helped you, I'm that very helped you a much lot. thankful for That your helped you a lot to create wealth. क्योंकि कैसा है, इसमें एक और प्रिंसिपल है, वेट एंड वॉच. कुछ लोग वेट करते हैं तो वो एक्शन ही नहीं लेते, और कुछ लोग वॉच करके वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Don't have the knowledge, you Yes, are not yes. watching, and that's why, because your portfolio was negative for a lot of time.
but because you were yes. not watching it, so you made the wealth. So your ignorance helped to create the wealth, because आपने अरसे के बाद देखा वो wealth को. Knowledge basically destroys the wealth. Yeah, क्योंकि means half knowledge destroys the wealth. So this is entirely यहाँ के equations अलग हो जाते हैं फिर. Yes, yes, yes. Yeah. Thanks a lot again. Very much grateful for your contribution towards our family functions and Thank you, everything. madam. Thank you. Okay. So shall we conclude, or somebody has to has any query or anything? Yes, I have a small suggestion. हाँ श्रीधर sir. Again, Bapat here. I have one proverb which almost everyone has been knowing about right from the childhood. I would like you to comment sometime, if not now. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. This is belief as well as proverb in most of the Indians' mind as such. I would like you to comment on this, maybe if not now, in some other webinar. Early to Thank bed, you. early to rise. Yeah, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Almost everyone who is attending this must have gone through this proverb right in the early school days, not even late school days. Please. Yeah, thank you, sir. So, should we conclude the meeting? Yeah. Yes, sir. Again, thanks a lot to everybody for sparing the time and joining. And I'm always available to your service. Anything related to belief discussion, don't hesitate. I don't charge any fees or anything for that. In fact, if I can destroy some limiting belief, because it's a favorite pastime for me to destroy this kind of belief. Finances में समझ में आता है थोड़ा बहुत, तो finances से related बताया मैंने. So you can always be in touch with me, call me, and we can work together. Yeah. Yes, sir. Thank you. Yeah. Thank you, Amit. Thanks, Amit. Thank you, sir. Thanks a Thank you, lot. Amit, sir. Yeah, thank you. Thanks, Very Amit. good session, sir. Thanks, Amit. Chalo. Thank you so much. Thanks, Amit ji. Thank you.